Students of class 12th, today in mathematics our topic is determinants. What is determinant? Every square matrix associated to an expression or a number which is known as its determinant. Determinant of a square matrix. Here we have taken a square matrix of order n. The elements are a11, a12 and so on up to a1n, a21, a22 and so on up to a2n, an1 and so on up to ann. There is associated to an expression called the determinant of A. Determinant A is equal to a11, a12, a13 and so on up to a1n. In the matrix expression, we use the rectangular box, but in notation of determinant we use these two lines. डिटर्मिनेंट को हम इस तरह की दो लाइंस के बीच में रखेंगे, जबकि हम मैट्रिसेस को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में रखते थे. सो वी कैन से दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन और अ नंबर which is called its determinant. यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स आप देख रहे हैं और इसको अगर हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा. Some points should be remembered. The first point is a matrix is an arrangement of numbers and so it has no fixed value. मैट्रिक्स की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है. A determinant having n rows and n column is known as determinant of order n. अगर n rows और n column है तो वो determinant of order n कही जाएगी. The determinant of non-square matrices are not defined. अगर non-square matrices है तो वो not defined होगी. खाली स्क्वायर मैट्रिक्स की हम डिटर्मिनेंट बना सकते हैं. ये जरूरी है कि जब डिटर्मिनेंट बनाया जाए तो मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर होनी चाहिए. अगर हम देखें यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया है, A is the square matrix, sin x cos x in the first row, tan x sec x in second row, then its determinant will be represented by sin x cos x in the first row, tan x sec x in the second row. ये डिटर्मिनेंट का एक्सप्रेशन है, ये मैट्रिक्स का एक्सप्रेशन है. B मैट्रिक्स यहाँ पे लिया है हमने. B is the matrix of order 3 by 3. In the first row the elements are 1 2 3, second row 4 6 1, third row 2 5 3. Then its determinant will be 1 2 3 4 6 1 2 5 3. Students, I have already told you that every square matrix is associated to an expression or a number which is known as its determinant. Here we have taken different order of square matrices and what will be its value. Each different order of square matrix has unique value and how it will come we will see one by one. First of all we have taken determinant of a square matrix of order 1. यहाँ पे हमने वन ऑर्डर की यानी 1 into 1 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट ली है और इसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालेंगे हम, ये हम आपको बता रहे हैं. इफ A is equal to a11, this is 1 by 1 order matrix is a square matrix of order 1, then the determinant of A is defined as, ये 1 into 1 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स थी, इसका डिटर्मिनेंट एक्सप्रेशन ये है आपका, और इसकी जो वैल्यू होगी, जो भी एलिमेंट इसमें रिप्रेजेंट होगा उसी के बराबर हो जाएगी. यानी ईच डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ इट्स एलिमेंट. जो भी उसमें एलिमेंट है उसी की वैल्यू के बराबर हो जाएगी. इसमें आप देख रहे हैं कि डिटर्मिनेंट में a11 एलिमेंट है तो a11 ही इसकी वैल्यू हो जाएगी. नाउ वी डिस्कस डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. यहाँ पे हमने 2 by 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स लिया हुआ है एंड स्क्वायर मैट्रिक्स द एलिमेंट्स आर a11, a12, a21, a22. दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. देन द डिटर्मिनेंट ऑफ A is defined as determinant A is equal to a11, a12, a21, a22 and its value will be a11 into a22 minus a21 into a12. First we multiply the diagonal element, then minus sign and product of non-diagonal element. Means
product of diagonal elements a11 into a22, then minus sign, and product of non-diagonal element a21 into a12. Here we have taken some example. How can we find the value of these determinants? First example is 5 4 minus 2 3. On the basis of this determinant of order 2, we have already told you that. Now the first example is 5 4 minus 2 3. Its value will be 5 into 3 minus 2 into 4, 15 plus 8, that is 23. Now in second example, sin square theta plus cos square theta, that is 1. In the third example, x minus 1 into x square plus x plus 1 minus x cube. This is an identity, a cube minus b cube, so we can write it x cube minus 1 minus x cube will be cancelled out and its value will be minus 1. Now in fourth example, 1 minus log a into b into log b into a. In place of log a into b, we can write 1 minus 1 upon log b base a into log b base a. Log b base a will be cancelled out, then 1 minus 1, that is 0. Students, now I am discussing determinant of a square matrix of order 3. 3 into 3 ऑर्डर की अगर कोई डिटर्मिनेंट है तो उस डिटर्मिनेंट की हम वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहले अगर आपको 3/3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो आपको हम कुछ साइन बता रहे हैं. ये साइन आपको अभी रिमेंबर करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे. और ये कैसे आए हैं, ये जब हम आगे अभी माइनर और कोफैक्टर्स डिस्कस करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा. These are the signs which are very helpful to expand 3/3 order determinant or to find out the value of the 3/3 order determinant. Plus minus plus minus plus minus plus minus plus, always alternate plus minus. You can see in this signs. Here we have taken a determinant of a square matrix of order 3. यहाँ पे हमने 3/3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स की एक डिटर्मिनेंट बनाई है. अब हम इसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं. वी कैन एक्सपैंड इट विद द हेल्प ऑफ एनी रो और एनी कॉलम. हम इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड कर सकते हैं. इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे हम इसको किसी भी रो के लॉन्ग एक्सपैंड करें चाहे किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड करें. If we expand it along R1, expand it along R1 means फर्स्ट रो. हम इसको फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपैंड कर रहे हैं. आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन ये साइन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. अब आपको यहाँ पे देखना है कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, चूंकि हम R1 के लॉन्ग एक्सपैंड कर रहे हैं, तो पहले अगर हम फर्स्ट रो के एलिमेंट में देखें तो A11 पहला एलिमेंट है और इसका साइन है प्लस, तो हम इस एलिमेंट को प्लस साइन के साथ उतारेंगे, यानी प्लस A11. अब इस एलिमेंट से रिलेटेड रो और कॉलम को छोड़ दिया जाएगा, लीव आउट कर देंगे. स्टूडेंट्स, A11 जो एलिमेंट है, आप उससे रिलेटेड रो यहाँ पे देखिए 1 और 1 सफिक्स में है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो ये हुई आपकी, फर्स्ट कॉलम ये हुई, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप छोड़ दीजिए, या कह सकते हैं आप इसको बंद कर लीजिए. तो आपके पास ये 2/2 ऑर्डर की एक डिटर्मिनेंट बचेगी. A22, A23, A32, A33. नाउ अब हम यहाँ पे इस रो का सेकंड एलिमेंट उतारेंगे और इस एलिमेंट का साइन यहाँ से देखेंगे जो कि है माइनस साइन, यानी माइनस A12. अब आप फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे.
फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को लीव आउट करेंगे तो आपके पास A21, A23, A31, A33 2x2 ऑर्डर में डिटरमिनेंट बनेगी। A21, A23, A31, A33. Now third element of the first row is A13 and its sign is positive, so plus A13. फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को लीव आउट कर दिए तो आपके पास ये डिटरमिनेंट बनेगी A21, A22, A31, A32। इस तरह के 2x2 डिटरमिनेंट्स अभी हमने आपको पहले सॉल्व करनी बताई है, उसी तरह से इसको सॉल्व करिए। A11 ब्रैकेट A22 इंटू A33 माइनस A32 A23 माइनस A12 A21 A33 माइनस A31 A23 प्लस A13 इंटू A21 A32 माइनस A31 A22। We have taken a problem here. This is a determinant of a square matrix of order 3. We have to find out the value of its determinant. इसकी हमको वैल्यू निकालनी है। अभी हमने आपको साइन बताए थे थोड़ी देर पहले, ये साइन वैसे ही रहेंगे। मैंने बताया था कि ये किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड कर सकते हैं। If we expand it along R1, then its value. How can we expand it along its first row? The element 3 प्लस साइन के साथ उतारा जाएगा 3, इससे रिलेटेड कॉलम और रो को छोड़ दीजिए तो 2 इंटू -1 -2 -1 +2, यहाँ -2 है, यहाँ भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, +2, इससे रिलेटेड रो और कॉलम को छोड़ दीजिए -1 0 देन +4, इस एलिमेंट से रिलेटेड रो और कॉलम को छोड़ दीजिए तो 1 -0। This is -3 -9 -2 +4 -11 +4, that is -7. We can expand it along any row or any column. The value will be same, that is -7. Expand this determinant along second row, then along second row the elements are 1 2 1 and here the sign minus, so -1, इससे रिलेटेड रो और कॉलम को लीव आउट कर दीजिए, रो सेकंड कॉलम फर्स्ट, यानी 2 -4 देन +2, इससे रिलेटेड रो और कॉलम को लीव आउट कर दो, -3 -0 देन -1, यहाँ पे माइनस साइन है, -1, से रिलेटेड रो और कॉलम को लीव आउट कर दिए तो 3 -0 -2 इंटू -1 दैट इज 2 -6 -3 2 -9 दैट इज -7। तो आपने देखा वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, चाहे हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड करें।